آغاز میں اہم خبر، کراچی میں بہادر آباد کے نجی اسپتال میں کار سوار خاتون کا بچے کی لاش چھوڑ کر فرار ہونے کا معاملہ۔ شہید ملت کے بنگلے سے بچے کو اسپتال منتقل کرنے والی خاتون بیٹے سمیت گرفتار۔ پولیس ذرائع نے تصدیق کی ہے، پولیس نے سرکاری مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اس اہم خبر کے حوالے سے۔ شہر قائد میں گزشتہ روز افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ بہادر آباد کے نجی اسپتال میں کار سوار خاتون کا بچے کی لاش کو چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے راہیل سلمان سے۔ جی راہیل، آگاہ کیجیے گا کہاں سے گرفتاری عمل میں لائی گئی اور دفعات میں کیا کیا شامل کیا گیا؟ دیکھیں، گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر بہادر آباد کے علاقے میں ایک کار سوار خاتون ایک نجی ہاسپٹل میں بچے کو لے کر آئی، اور جب ڈاکٹر نے اس کا میڈیکل کیا تو وہ اس وقت تک ڈیڈ ہو چکا تھا، وہ اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کی جانب سے تصدیق کے بعد خاتون نے ایک ایمبولینس کال کی اور اس کو ایک قریبی سرد خانے لے جانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران جب ایمبولینس میں میت رکھی گئی تو اس دوران کار لے کے خاتون وہاں سے فرار ہو گئی۔ پولیس واقعے کی اطلاع ملنے پر پہنچی اور سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی، تو اس کے بعد پھر اس تمام تر واقعی تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس میں بچے پر تشدد کے واضح نشانات تھے، چہرے پر اور جسم کے دیگر حصوں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق بچے کے ساتھ بدفعلی بھی کی گئی تھی۔ پولیس حکام یہ بتاتے ہیں، ہماری ذرائع سے بات ہوئی تو پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جب واقعی تحقیقات کا آغاز کیا گیا تو اس سلسلے میں مختلف سی سی ٹی وی فوٹیجز اور مختلف افراد کو حراست میں بھی لیا گیا، جنہوں نے پھر بعد میں نشاندہی کی کہ ایک خاتون اور جو خاتون یہاں پہ چھوڑ کے گئی تھی بچے کی لاش کو، اس کو پولیس نے حراست میں لے لیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس خاتون کے بیٹے کو بھی حراست میں لیا گیا۔ سمرین نام بتایا جا رہا ہے اور فرحان ان کے بیٹے کا نام ہے۔ پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ابتدائی تفتیش میں خاتون نے وجہ یہ بتائی ہے کہ اس جو لڑکا تھا، آفتاب نام اس کا تھا، اور وہ ان کا گھریلو ملازم تھا، 12 سے 13 سال اس کی عمر ہے تقریباً، اور ان کے گھریلو ملازم تھا، اس پہ کچھ رقم چوری کرنے کا الزام تھا۔ اس پر ان لوگوں نے اس پر بچے پر تشدد کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ابتدائی طور پہ جو اس کی طبیعت خراب ہوئی، جس پر انہوں نے گھر میں ہی علاج کرنے کی کوشش کی، رات بھر اس کو کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی طرح ریکور ہو جائے، لیکن جب طبیعت نہیں سنبھلی تو پھر کل دوپہر کے وقت جو وہ ان کو ہاسپٹل لے کر آئے، حالانکہ ان کو اس وقت معلوم ہو چکا تھا کہ بچے کی موت واقع ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ ایک نجی ہاسپٹل لے کر پہنچی ہے خاتون، اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ فرار ہو جاتی ہے۔ پولیس حکام نے ابھی تک اس واقعے کی تصدیق نہیں کی، لیکن پولیس ذرائع اس بات کو کنفرم بتاتے ہیں کہ اس واقعے میں ملوث خاتون جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی نظر آ رہی تھی، ان کو اور ان کے بیٹے کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ گرفتاری جو ہے وہ اس کار کا جو رجسٹریشن نمبر تھا اس کے ذریعے عمل میں آئی، جس کے رجسٹریشن نمبر پہ جو ایڈریس ملا وہ ایڈریس جو ہے وہ جو جس کے نام پہ گاڑی تھی وہ سب وہاں سے گھر چھوڑ کے جا چکے تھے۔ وہیں سے پھر پولیس کو کچھ لیڈز ملی اور کچھ ٹیکنیکل ایویڈنس جو ہے وہ پولیس نے کلیکٹ کیا، جس کی بنیاد پر یہ بڑی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئی ہے۔ پولیس حکام یہ بتاتے ہیں کہ واقعی تحقیقات جاری ہے اور اس میں مزید دیگر کتنے افراد ملوث ہیں ان کا بھی تعین کیا جائے گا، ان کو بھی جلد از جلد گرفتار کیا جائے گا، جبکہ بچے کے جلد گرفتار کیا جائے گا۔ راہیل، یہ بھی بتائیے گا خاتون اور اس کے بیٹے کے علاوہ اور کتنے لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا ہے اور گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں؟ دیکھیں، اس کے علاوہ متعدد افراد کو حراست میں ضرور لیا گیا تھا، کیونکہ پولیس کو کچھ لیڈز ملی تھیں، تو جو علاقے میں گھریلو ملازمین ہوتے ہیں، جو گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو مختلف مالی ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، گھروں کی ماسیاں ہوتی ہیں، تو گھریلو کام کاج کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان سے پولیس نے کچھ معلومات حاصل کی تھی، اور اسی بنیاد پر جو کچھ افراد کے باقاعدہ طور پر بیانات بھی قلمبند کیے گئے تھے، اور اسی طرح لیڈ سے لیڈ ملتی چلی گئی۔ کچھ ٹیکنیکل ایویڈنس پولیس نے کلیکٹ کرے، جیو فینسنگ کی گئی علاقے کی، تو اس کے بعد پھر یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے، ورنہ گاڑی کے رجسٹریشن کے نمبر پہ جو ایڈریس تھا وہاں سے وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس کے بعد پھر پولیس نے تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کیا، تو پھر کچھ لیڈز ملی رات کو پولیس کو، تو اس کی بنیاد پہ پھر آج صبح یہ کارروائی کی گئی ہے اور خاتون اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس سے پہلے جو ہے اس واقعے کا مقدمہ قتل کی دفعہ 302 کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ اسرٹین نہیں تھا کہ اس کے قتل میں کون ملوث ہے، تو لہٰذا اس وقت جب مقدمہ درج کیا گیا تو وہ نامعلوم کے خلاف تھا۔ لیکن اب جو ہے پولیس حکام یہ بتاتے ہیں کہ ابتدائی تفتیش میں پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ابتدائی تفتیش میں دونوں ماں بیٹے نے اپنے اس جرم کا اعتراف کیا ہے۔ یہ ان کا گھریلو ملازم تھا، آفتاب نام انہوں نے اس بچے کا بتایا ہے، جو کہ ان کا گھریلو ملازم تھا، لیکن انہوں نے جو ابتدائی بیان دیا اس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بچے نے ان کے گھر سے کچھ پیسے جو کہ 15 سے 20 ہزار روپے کے درمیان وہ رقم بتاتے ہیں، تو وہ اس بچے نے چرائی تھی، اس کی بنیاد پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ گھر میں جو امور خانہ داری میں کچن میں یوز ہوتا ہے بیلن، جسے آٹا اور روٹی بیلتے ہیں، تو اس بیلن سے اس پر ٹارچر کیا گیا، جو کہ چہرے میں بھی اس کے واضح نشانات تھے اس کے ٹارچر کے، تو اس ٹارچر کے نتیجے میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ٹھیک ہے راہیل، بہت شکریہ آپ کا تمام تر معاملے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اپڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے۔ گزشتہ
गुज़िश्ता रोज़ कराची में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। कराची बहादराबाद के निजी अस्पताल में एक कार सवार खातून का बच्चे की लाश को छोड़ने का ये मामला है। शहीद मिल्लत के बंगले से बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करने वाली खातून और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ सरकार की मदय्यत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान माँ और बेटे की जानिब से बच्चे पर तशद्दुद का एतराफ़ भी कर लिया गया है। पुलिस ज़राए ने तस्दीक की है 20,000 रुपए की चोरी के इल्जाम में बैलेंस से तशद्दुद किया गया। दूसरी जानिब सड़कों की बंदिश से यरगमाल अवाम का सुख चैन बहाल हो गया। 5 रोज बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जमीनी राब्ते बहाल हो गए। पीटीआई का धरना खत्म करने के बाद मोटरवे M1 और M2 पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा। रावलपिंडी में भी मामलात जिंदगी बहाल हो गए। बाजारों और मार्केटों में रौनकें लौट आईं। 3 दिन की बंदिश के बाद तालीमी इदारे भी खुल गए हैं। सड़कों की बंदिश से यरगमाल अवाम का सुख चैन बहाल हो गया है। आपको बताते चलें कि 5 रोज बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जमीनी राब्ते बहाल हो गए। पीटीआई का धरना खत्म होने के बाद मोटरवे M1 और M2 पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। रावलपिंडी में भी मामलात जिंदगी बहाल, जबकि बाजारों और मार्केटों में रौनकें लौट आई हैं। खबर आपको दें, 30 से 35 बंदे सबका रास्ता बंद कर देते हैं। इंतजामिया ने क्या एक्शन लिया? लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई के एहतजाजी धरनों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। 30 से 35 बंदे सबका रास्ता बंद कर देते हैं। इंतजामिया ने अभी तक क्या एक्शन लिया? लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई के एहतजाजी धरनों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। कौन कौन से रास्ते बंद हैं, अदालत ने मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली है। अपडेट करते चलें इस अहम खबर के हवाले से। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर CPO और DIG मोटरवे से 16 नवंबर तक तफसीलात तलब कर ली हैं। पुलिस और इंतजामिया रास्ते खुलवाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नायब कप्तान की क़यादत में खिलाड़ी फिर GT रोड पर तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज गुजरात से अगली मंजिल की जानिब रवाना होगा। गुज़िश्ता रोज लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हो गया। चेयरमैन PTI इमरान खान वीडियो लिंक पर कारकुनों से खिताब करेंगे। शहजाद अकरम हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आगाह कीजिएगा इस लॉन्ग मार्च के हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है नायब कप्तान की जो क़यादत में जो लॉन्ग मार्च है वो वज़ीराबाद जाकर जो है इख्तिताम पजीर हुआ था। आज जो है ये गुजरात जो है वो इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा नमाज जुमा के बाद। अभी थोड़ी देर पहले ही शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इस चीज़ का सारा जो है प्लान बताया था। इसमें जो है आज ये नया एक प्लान जो है वो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो मार्च है ये नमाज जुमा के बाद जारी होगा और इसके साथ साथ चलता हुआ पहले रामतलाई चौक पहुंचेगा, जहां पे जो कारकुनान है वो उनका इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद जो है ये मार्च जो है वो चलता हुआ GTS चौक पहुंचेगा, जहां पे कायदीन जो है वो अपने अपने खिताबात करेंगे और उसके बाद जो है इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक पे खिताब करेंगे। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो जिस तरह गुज़िश्ता रोज जो वज़ीराबाद में जो है जिस तरह मामला देखने में आया था, इसी तरह ही जो है वो गुजरात में भी 4000 से ज़ायद एहलकार जो है वो मार्च के रास्तों में जो है वो तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। नमाज जुमा जो है जुमा के दिन जो है यहाँ पे मार्केटें जो है वो नॉर्मली तौर पर जो है वो बंद ही होती हैं। जो इक्का दुक्का दुकानें खुली होंगी उनको भी जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो छतें हैं उन पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। दूसरी बात यह है कि ये आगे का जो प्लान है उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान जो है अपने वीडियो लिंक के खिताब के अंदर ही बताएंगे। दूसरा जो मार्च है ये बिल्कुल मार्च की तरह ही रहेगा, इसको जलसों में जो है वो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। और आज जो है असद उमर नहीं आएंगे, वो फैसलाबाद से जो है वो अपने मार्च का आगाज करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पीटीआई के सेनेटर्स का आजम सवाती के हक में एहतजाज, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया गया, अलामती धरना भी दिया गया। सेनेटर्स की आजम सवाती के हक में नारेबाजी, इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया गया है। पीटीआई सेनेटर्स का आजम सवाती के हक में एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया गया और इलामती धरना दिया गया। सेनेटर्स की आजम सवाती के हक में नारेबाजी और सेनेटर्स की जानिब से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा भी किया गया। पीटीआई सेनेटर्स का आजम सवाती के हक में एहतजाज किया गया, सुप्रीम कोर्ट से धरना भी दिया गया। सेनेटर्स की आजम सवाती के हक में नारेबाजी और सेनेटर्स का आजम सवाती को इंसाफ फराहम
फराहम करने का मुतालबा भी सामने आया है। PTI सैनिटर्स ने आज़म सवाती के हक में एहतजाज किया है, जबकि सैनिटर्स की आज़म सवाती के हक में नारेबाजी भी देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। PTI सैनिटर्स का आज़म सवाती के हक में एहतजाज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ केस लार्जर बेंच को भिजवाते हुए समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने नोट में लिखा कि दरख्वास्त में अहम और कानूनी निकात उठाए गए हैं, जिनकी तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। वफाक के वकील ने एतराज़ कर दिया कि मुतल्लिका वजारत को फरीक नहीं बनाया गया। वजारत कानून मुतल्लिका फरीक है। इमरान खान के वकील अजहर सदीक ने कहा कि इसकी अहमियत के पेश नज़र इसे लार्जर बेंच को भेजा जाए। देखना है इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर पार्लियामेंट को बराह रास्त नाअहल करार दे सकता है। वफाक के वकील ने लार्जर बेंच की तश्कील पर एतराज़ ना किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दाखिल कराने के लिए 15 रोज़ की मोहलत तलब कर ली। अदालत ने वफाक की वजारत कानून और इंसाफ और इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर दी। खबर आपको दें, जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया है। दूसरी जानिब जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठा लिया है, जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया है। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छठे चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। 3 नए जजेस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 15 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में ताहायाल मजीद 2 जजेस की नशिस्तें खाली हैं। उधर कराची में शहीद मिलत रोड पर ट्रैफिक हादसा, नौजवान जाम बहक हो गया। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची में शहीद मिलत रोड पर ट्रैफिक हादसा, नौजवान जाम बहक हो गया। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। कराची में शहीद मिलत रोड पर ट्रैफिक हादसे में नौजवान जाम बहक हो गया। मौके पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। आपको बताते चलें कि कराची में शहीद मिलत रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें नौजवान जाम बहक हो गया। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं कराची से। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन की वजीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी हुई। मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात के हक में धरना दे रखा है। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने। पुलिस ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है। उनके क्या मुतालिबात हैं, जान लेते हैं दुआ अब्बास से। जी दुआ, आगाह कीजिएगा इस एहतजाज के हवाले से। जी, ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से महकमा सेहत सिंध को जो है आज दोपहर 12 बजे तक का जो है अल्टीमेटम दे दिया गया था, जिसके बाद जो है शहर के सरकारी अस्पताल में गुज़िश्ता 1 माह से तकरीबन जो है वो ओपीडी का बाइकआउट किया गया था, जबकि ये 14 दिन है जबकि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी और ICU की जो सर्विस थी वो जो है फाल थी, जबकि इसके अलावा तमाम तर सर्विसेज जो है वो मअतल कर दी गई थी। जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, कौमी इदारा बराए शहर अतफाल समेत सदर अस्पताल समेत शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो गुज़िश्ता 4 रोज से सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है सरापा एहतजाज बन गए थे, जिसके बाद जो है आज 12 बजे तक नोटिफिकेशन जारी ना होने के सबब जो है इन्होंने CM हाउस का रुख कर लिया है और CM हाउस की जानिब जाने पुलिस की बड़ी तादाद भी यहाँ पे, भारी तादाद भी यहाँ पे मौजूद है। वाटर कैनन भी यहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं, जबकि पुलिस मोबाइल समेत जो है डंडा बरदार भी यहाँ पे मौजूद है। पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इनको SN कॉलेज तक ही जो है महदूद कर दिया जाए और CM हाउस तक आगे बढ़ने बिल्कुल भी ना दिया जाए, जबकि इस हवाले से हमने पार्लिमानी सेक्रेटरी कासिम सिराज सुंबो से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ दिया गया है कि पाकिस्तान में जो है अब कोरोना वबा जो है उसका खात्मा हो चुका है। इसके बाद हेल्थ रिस्क अलाउंस की जो वसूली है या उसकी जो फराहमी है ये लेना जायज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी डॉक्टर जो है वो एहतजाज करें और एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया दुआ अब्बास।